السلام علیکم. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں www.thelifetv.tv پر پروگرام لیونگ لائف وتھ ساجدہ فرنام. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ میرے اس پروگرام میں ہمیشہ روشن ستارے آتے ہیں پاکستان کے، جو اپنی اپنی فیلڈ میں بہت ہی یونیک کام کر رہے ہیں اور اس سے پاکستان کو اونچا لے جانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کے لیے ایسے مہمانوں کو ڈھونڈ کر لاتی ہوں. آج بھی میرے ایک ایسے ہی مہمان ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، اپنی فیلڈ میں کس طرح کام کر رہے ہیں، یہ سب آپ کو پروگرام کے دوران میں پتہ چلتا رہے گا. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. اپنا تعارف کروائیے. میرا نام امر گرڈو ہے اور میں پرنٹ میڈیا جرنلسٹ ہوں ڈیلی ٹائمز کے ساتھ کراچی میں. اور میں انوائرمنٹ پہ جو ہے انوائرمنٹل جرنلسٹ ہوں. انوائرمنٹ پہ لکھتا ہوں. سر انوائرمنٹ پہ لکھتے ہیں؟ انوائرمنٹ پہ تو بڑا عجیب سی آپ نے بات کی. ہمارے تو کرمنل رپورٹر ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے جرنلسٹ ہوتے ہیں، یہ انوائرمنٹ پہ آپ کیوں آ گئے؟ دیکھیں کسی نہ کسی کو تو آنا تھا، کیونکہ یہ ایک اتنا اہم سبجیکٹ ہے کہ اس پر ہماری پوری اکانومی جو ہے وہ انوائرمنٹ ریلیٹڈ چیزوں سے اس پر انحصار کر رہی ہے، مگر اس پر کوئی بھی بات نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ میں نے کراچی میں جرنلزم سٹارٹ کیا تھا 2006 سے. اور 2006 سے جب میں نے انوائرمنٹ پہ کام کرنا شروع کیا تھا تو ہمارے ایڈیٹر صاحب کہتے تھے کہ یہ کیا سبجیکٹ ہے، یعنی کہ وہ اس کو بیٹ ماننے کو تیار نہیں تھے. اور اس وقت صرف ایک اخبار تھی جو ڈان، اس کے اندر دو دوست جو ہیں وہ تھوڑا بہت لکھتے تھے، مگر عام طور پر اخبارات اس دور میں اس پر بات کرنے کو تیار نہیں تھے. تو ہم نے سلو لکھنا شروع کیا اور میں نے 2007 میں جوائن کی تھی ڈیلی ٹائمز. اس وقت نجم سیٹھی ہمارے ایڈیٹر تھے اور یہاں ہماری کراچی آفس بہت ایکٹیو تھا اور ڈیلی ٹائمز بہت اچھا اخبار تھا. تو اس میں اتنے امپورٹنٹ ایشو انوائرمنٹ کے تو آلریڈی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور جب اس کو آپ پراپر طریقے سے اپنے دل سے رپورٹ کر رہے ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ جس دن کراچی کے اندر 20 لوگ ٹارگیٹ کلنگ ہو گئے تھے، اس دن میرے اخبار میں جو سٹی کا پیج تھا انہوں نے مجھے فل پیج کوریج دی تھی ایئر پولیوشن کا. تو یہ ہے کہ جب آپ دل سے لکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تو جگہ ملتی ہے اس کو. اور وہ جو 20 لوگ تھے اس کو نیشنل پہ انہوں نے لگایا تھا کہ ٹارگیٹ کلنگ میں کراچی میں 3 لوگ مارے گئے، اور جو سٹی کے جو پیجز تھے جو کہ ایکسکلوسیولی کراچی کے لیے ہوتے ہیں تو انہوں نے اربن پولیوشن پر مجھے جو ہے انہوں نے پورا پیج دیا. سر یہ شوق کیسے ہوا آپ کو؟ ہمارے یہ تو بتائیں کہ آپ نے بتایا آپ اس فیلڈ میں آئے، بگنر تھے اور آپ نے سب کچھ اسٹارٹ کیا. آپ کو شوق کیسے ہوا کہ مجھے انوائرمنٹ کی طرف ہی جانا؟ دیکھیں میں تو میری فیملی میں سب ڈاکٹر ہیں. میں خود جو ہے وہ MBBS کر رہا تھا، تو وہاں سے بھاگا. میں نے کہا مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا اور میں نے جرنلزم میں ڈاکٹر بن کے تو آپ کافی پیسے کما نہیں پیسے کمانے کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ پیسے کمانا مجھے نہیں پتا پیسوں کو کیا کرنا ہوتا ہے، یہ سمجھ میں ہمارے ملک میں تو لوگ اسی لیے نہیں آپ کو، کیونکہ آپ نے 2 روٹی ہی کھانی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو اتنے پیسے ہوں کہ آپ کی لائف جو ہے اس کے اندر پرابلمس نہ ہو. تو مجھے ایک امریکن اسکالر تھا ہماری یونیورسٹی میں، میڈیکل یونیورسٹی جام شورو کے اندر، وہ ان کا ایک لیکچر تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر میں بہت بڑا پوٹینشیل دیکھ رہا ہوں میڈیا کے حوالے سے، کہ یہاں پر یہ بہت بڑا ملک ہے اور یہاں پر جو میڈیا کمیونیکیشن کے ذرائع آئیں گے، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، انٹرنیٹ ہو، وہ موبائل ہو، وہ ٹیلی ویژن ہو، جو بھی ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ایک بوم آئے گا یہاں پر. اور وہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی. اور میری نیکسٹ ڈے میں نے اپنی بکس میڈیکل والی وہیں چھوڑی تھی اور میں چل پڑا تھا. اور گھر والے مان گئے تھے؟ گھر والے نہیں مانے تھے، وہ آخر تک بڑے ڈسٹرب تھے کیونکہ ان کے خواب تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور یہ کروں. تو آج تو جو میرے کزنس ڈاکٹر ہیں وہ بھی مجھے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کاش ہم بھی جوائن کرتے جرنلزم. تو یہ کہ اس کے بعد کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ صحرائے تھر سے ہے اور بچپن سے ہی میری نیچر میں جو ہے وہ انوائرمنٹ رچا بسا ہوا ہے، کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے اس کی جو صحرا کی لائف ہے، پوری زندگی جو ہے وہ انوائرمنٹ سے ہی ہے کہ وہاں آپ قحط آ رہے، وہاں خوشحالی آ رہی ہے، وہاں مائگریشن ہو رہی ہے، وہاں کھانا نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے، پانی کے کفایت بہت نیچے ہے. تو وہ تو خیر بچپن سے ہی تھا.
تو انوائرمنٹ میں آنے کے بعد میں نے ایک دو اسٹوریز کی تو اس کا رسپانس مجھے اتنا زیادہ ملا کہ لوگوں کی طرف سے کہ لوگ سارا دن جو ہے وہ کرائم کی اسٹوریز پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے اخبارات میں یعنی یہ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا کہ آپ کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا پولیٹیکل لیڈرز کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو لیڈ کیا جائے. یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں روزانہ صرف اور صرف لیڈ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ پرائم منسٹر کی, پریزیڈنٹ کی. اور ایک آپ فارمولہ چیک کریں, میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آپ اگر ہمارے 200 اخبارات لے لیں ایک ہفتے تک تو اس کا فارمولہ یہ ہوگا کہ ایک دن جو لیڈ ہوگی وہ پریزیڈنٹ کی ہوگی, ایک دن پرائم منسٹر کی ہوگی, ایک دن فوٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر کا چھپے گا, دوسرے دن پریزیڈنٹ کا, تیسرے دن چیف آف دی آرمی اسٹاف. آپ بالکل چیک کر لیں 250 اخبارات, اگر 200 اخبارات آپ ایک ہفتے تک چیک کریں تو اس کے اپر ہاف میں یا تو کسی لاشیں ان کے فوٹو ہوں گے, ڈیڈ باڈیز کے فوٹو ہوں گے, یا پھر جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کی تصویریں ہوں گی. حالانکہ اس ملک کے اندر میں آپ کو اسٹڈیز بتاؤں کہ یونائٹڈ نیشن کی اسٹڈی ہے کہ پاکستان کے اندر انوائرمنٹ کی خرابی کی وجہ سے روزانہ 1 بلین روپیز کا لاس ہوتا ہے, یعنی صرف انوائرمنٹ خراب ہونے کی وجہ سے. تو اس کو ہم کیلکولیٹ نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں اتنے بڑے ڈیزاسٹر آ چکے ہیں. جو 2010 کا فلڈ تھا جس کو سپر فلڈ ہم کہتے ہیں آج, اس فلڈ کی جو آپ اندازہ کریں کہ ایک جو کلومیٹر روڈ ہے وہ 21 لاکھ روپے میں بنتا ہے ہمارے ہاں. اسٹینڈرڈ جو ہے اس میں 8000 کلومیٹر روڈ بہ گیا تھا. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا نقصان ہوا ہوگا. اور یونائٹڈ نیشن کی یہ فگر ہے, یونائٹڈ نیشن نے یہ فگر کی تھی کہ جو اس کا جو زلزلے کا کتنا نقصان ہوا تھا اپنا سیلاب کا, وہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یونائٹڈ نیشن نے کہا تھا کہ کشمیر زلزلہ 2005 اور ہیٹی کا زلزلہ برابر اور سونامی, ان تینوں کے نقصان کو اگر جوڑا جائے تو سپر فلڈ کا جو نقصان تھا وہ اس سے زیادہ تھا, جس میں کھڑی ہوئی فصلیں تباہ ہو گئی تھی, روڈ بہ گئے تھے, جس میں گورنمنٹ اسکولز جو ہیں وہ بہ گئی تھی, ختم ہو گئی تھی, گر گئی تھی. اس کے بعد آپ کی بہت ہی چینلز خراب ہو گئے تھے, زمینیں خراب ہو گئی تھی. یعنی ایک بہت بڑے ایریا ہے, کیونکہ آپ پاکستان کو اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر بلوچستان والا بہت سا ایریا جو ہے وہ وہاں پانی نہیں ہے. سندھ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایسٹرن سائڈ انڈین بارڈر کے ساتھ صحرا ہے پورا, اور اس کی ویسٹرن سائڈ پر جہاں کراچی سے اسٹارٹ ہو کر دادو اور جامشورو, دادو اور جیکو آباد تک جو ہے وہ پہاڑی ایریا ہے. صرف درمیان والا حصہ ہے جہاں انڈس ایکو سسٹم ہے, اس ایکو سسٹم میں پوری ایگریکلچر ہوتی ہے. پنجاب میں بھی اسی طرح ہے. تو اسی حصے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا, یعنی اس کی سب کچھ تباہ ہو گیا. یہ اس زمین کو واپس زرخیز بنانے کے لیے یا اس کو فصل لگانے کے لیے جو پیسے لگانے تھے فارمر کو, ہم نے تو ان کو وطن کارڈ کے نام پر 20,000 روپے دے دیے. اس کا زمین جو ہے, اس کی جو زمین ہے وہ 10 لاکھ روپے کی فارغ اس کو بنانے میں لگ رہے ہیں, وہ کون کرے گا؟ اور ابھی تک اس کی ریکوری نہیں ہوئی ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر طالبان سے بات کی جائے, یہاں پر جو ہے وہ ہمارے ہاں جو بہت افسوس کی بات ہے. ہماری پوری زندگی جو ہے, ہماری پوری لائف جو ہے وہ اسی انوائرمنٹ سے ریلیٹ ہے, ان سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میں صرف آپ کو فگرز بتاؤں نا تو آپ کا دل دہل جائے گا کہ 1946 کے اندر 26% فارسٹ کور تھا ٹوٹل جاگرافی کا. 26% جو ہے پاکستان کا ایریا جو ہے وہ فارسٹ سے جنگلات سے گھرا ہوا تھا. آج جو ہے گورنمنٹ کی فگر ہے کہ وہ 4.8%, 26% سے 4.86%. آپ اندازہ کریں کہ ایک درخت کو بڑا ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اور آپ چاول کی ایک پلیٹ جو کھاتی ہیں نا, اس میں 6000 گیلن پانی چاہیے اس کو بنانے کے لیے. ایک درخت جو 10 سال کا ہو اس نے 50,000 گیلن سے زیادہ پانی پیا ہوتا ہے. ہم اس کو ایک دن میں کاٹ دیتے ہیں. اس پر کوئی اسٹیٹ نامی چیز نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو مجھے شروع سے یہ بڑا دکھ ہوتا تھا کہ ایز اے جرنلسٹ ہم ان چیزوں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور ہماری کوسٹ لائن پوری خراب ہے, ہمارے دریا پورے ختم ہیں, ہماری برڈ پاپولیشن ختم ہوگی, پیسٹی سائڈ کا استعمال ہم کرتے ہیں, زہر ہم پھینکتے ہیں, اربن پولیوشن ہمارے پاس ہے. دنیا کی ایسی کوئی وبائی صورت نہیں ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ہمارے ملک میں نہ ہو. تو اس صورت میں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے, کیونکہ آپ کے بڑے نام جو ہیں وہ کرائم رپورٹرز ہیں, وہ پولیٹیکل رپورٹرز ہیں, آپ کے
सब जो 90 टेलीविजन एंकर्स हैं वो सब के सब पॉलिटिकल एंकर्स हैं, बड़े नाम हैं। तो मुझे बड़े नामों में नहीं जाना था, मुझे ये था कि अपने ज़मीन, अपने लोगों, अपने मुल्क के हवाले से जो चीज़ें हैं उसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। बड़ी खुशी हुई आपके ख्याल जान के, और अफसोस हुआ कि पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में, लेकिन क्या वजह है कि मीडिया इसको हाईलाइट क्यों नहीं करता, क्यों नहीं लोगों को बताता कि दरख्त ना काटें, इससे आपका अपना माहौल तबाह हो रहा है, इससे आपके कल के बच्चों की सेहत खराब हो रही है, आपके खाने को नहीं होगा तो आप रहोगे किस तरह, ऑक्सीजन नहीं होगी तो सांस किस तरह लोगे, क्यों मीडिया हाईलाइट नहीं करता इसको? क्या मीडिया की प्रायोरिटीज 2-3 चीज़ें उसमें जो है ना वो है। एक तो ये कि हमारी मीडिया की प्रायोरिटी इसलिए नहीं बन पा रही कि वो लोग समझते हैं कि लोग शायद इन चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारी मीडिया के लिए रोल मॉडल है वो जियो टेलीविजन चैनल है। जियो टेलीविजन चैनल जब लॉन्च हुआ था तो जंग ग्रुप के जो क्राइम रिपोर्टर्स थे उन्होंने उसकी पूरी डिज़ाइन की थी और उन्होंने उसको पूरा बेस कर दिया था क्राइम पर। हम वही सुन रहे हैं आज, हर वक्त यही होता है, इतने लोग मर सारे गए, टीवी चैनल्स पर देखें कि उसका जो है ना वो ब्रेकिंग न्यूज उसी पे होगी। हमारी एक काउंसिल बनी हुई है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट, जो कि हमने 2012 में बनाई थी। उसमें हम 40 एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं मुख्तलिफ शहरों से। हमने अभी सर्वे किया है जो नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा और हम 1 साल का वो सर्वे था और उसमें हम लोग ये पहली आपकी टीवी है जहाँ पर मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ सर्वे को। थैंक यू जी कि आपने हमें ये बताया। नहीं बिल्कुल, मैं उसमें मुझे बड़ी खुशी होगी कि उसमें हमने 46 टीवी चैनल्स को राउंड द क्लॉक मॉनिटर किया है कि वो एनवायरनमेंट पे कितना कवर करते हैं। और आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि मेन स्ट्रीम के 46 टीवी चैनल्स में से जो उनकी कवरेज है वो 86% कवरेज सिर्फ 3 चीज़ों को जाती है, वो है क्राइम, कोर्ट और पॉलिटिक्स। यानी कि बड़ा चंक जो है वो क्राइम को और कन्फ्लिक्ट्स को देते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को देते हैं, उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देते हैं। और जो एनवायरनमेंट जिसकी वजह से 1 बिलियन रुपीस का रोजाना लॉस हो रहा हो उसको सिर्फ 2.8% कवरेज दी जा रही है। तो अभी हम वो नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि उसका बड़ा इवेंट करें और सबको बताएं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसको किस तरह कर रही है हाईलाइट। तो ये एक बड़ी दुख की बात है और मेरे ख्याल में हमें हमारी पूरी मीडिया को इस पर काम करना चाहिए और इसको हाईलाइट करना चाहिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये इशूज हैं। अच्छा, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि हमें बचपन से क्यों नहीं बताया जा रहा होता कि ये इन्वायरमेंट हमारी है, ये ज़मीन हमारी है, जहाँ भी हम रह रहे हैं, जिस जगह भी रह रहे हैं, इसको साफ रखें। ये हमें बचपन से बताया नहीं जा रहा होता। जब हम बड़े होते हैं और जब हमें, जैसे अभी आपने बताया या कोई बड़ा बताता है कि भाई ये तुम इस तरह माहौल को ख़राब कर रहे हो, तो उस वक्त हमारी आदतें डेवलप हो चुकी होती हैं, हम कूड़ा फेंकने के आदी हो चुके होते हैं, उस वक्त हम सब कुछ कर रहे होते हैं। कोई ऐसा तरीका है आपके ख्याल में कि हमें बचपन से इन बातों की आदत दिलाई जाए, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ही उसी से, क्योंकि देखें हमारा मुल्क जो है ना वो कन्फ्लिक्ट में रहा है, उनकी प्रायोरिटीज दूसरी रही हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल्स रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, मुख्तलिफ आर्मी कू से लेकर मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो रही हैं। तो हम फ्री नहीं थे कि हम अपने नेशन की एक डेवलपमेंट करें या उसको जो है तरबियत दें इस हवाले से कि वो इस पर काम करें। मेरा एक दोस्त थे अमेरिकन, वो कराची आए हुए थे, तो हमने पानी की बोतलें ली, वो रेपर लगा होता है तो उन्होंने वो निकाल के और वो 3 घंटे तक उनके हाथ में था। उन्होंने कहा मुझे डस्टबिन नजर नहीं आ रहा कि मैं उसको फेंक, नहीं केयर करते हैं। तो मैंने उसको कहा कि यार ये आप देखें रोड पे हर जगह पे फेंके, आप फेंकें, क्या मसला है? उसने कहा सब जो कर रहे हैं मैं वो क्यों करूं? और उन्होंने कहा मुझे बचपन से ये आदत नहीं है, मैं फेंक ही नहीं सकता इसको, मैं सारे काम छोड़ दूंगा, मैं इसको करेक्ट ठिकाने लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है डस्टबिन से ये प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा ये वहाँ लगाते हैं या ये डस्टबिन जो है ना ये पिलाला के पीछे जाकर खाली कर देते हैं, इसको कोई मसला नहीं होगा। तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल में बच्चों के अंदर अगर हम वो आदत लाएं तो ही 10-20 सालों में ये है कि लोगों को एहसास होगा कि इस तरह खाली बोतलें ना फेंकी जाएं या हम लोग दरख्तों को ना काटें या हम लोग सफाई सुथराई रखें या हमने क्या करना है, कचरे को जमा करना है, उसको दिल लगा देनी है। अब अल्लाह जाने कहाँ जाएगा, क्या होगा, किसका नुकसान होगा। ना हमारे पास कोई वो मीटर है कि हम चेक करें किसका नुकसान कितना होता है। आपको पता है हमारी हेल्थ बजट जो है, अगर हमारा एनवायरनमेंट ठीक हो जाए तो हेल्थ बजट हमारी वो 90% रिड्यूस हो जाए।
दुनिया की वो सब बीमारियां जो सारी दुनिया से खत्म हो गई हैं अभी तक हमारे पास मौजूद है। इसकी वजह ये है ना कि हम अपने एनवायरनमेंट हमारा खराब है। हमारे यहाँ मलेरिया है जिसका कंसेप्ट ही नहीं है, यदि डेवलप कंट्री जो है उनमें तो कंसेप्ट नहीं है, मगर बहुत से ममालिक में मलेरिया का कंसेप्ट ही नहीं है। पोलियो सारे दुनिया से खत्म हो गया है, सिर्फ अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान, पूरी दुनिया को जो है ना उन्होंने स्टेज पे लगाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये इस गंदे माहौल की वजह से। तो मेरे ख्याल में ये इतना अहम इशू है और हमें मीडिया वालों को तो खास तौर पर इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, ये भी बताइए कि आपने बताया कि इस तरह बच्चों को हम सिखा सकते हैं, ये भी बताएं कि ये जो अभी हमारे यहाँ कराची सिटी में बहुत सारे ब्रिजेस बन गए हैं, बहुत सारे रोड्स बने, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ट्रैफिक उसी तरह है, उसी तरह हम आज भी पॉल्यूटेड फिजा में रह रहे हैं, उसी तरह बीमारियां हमारे अंदर आ रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कराची में रहने वालों का अगर सर्वे किया जाए तो 99% लोग टीबी के मरीज निकलेंगे, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखें, कराची शहर के अंदर अर्बन कराची में सिर्फ आप एक साइड देख रही हैं, मैं दोनों साइड देख रहा हूँ। कराची के अंदर अर्बन फॉरेस्ट जो है उसका बहुत बड़ा तादाद था, जिसमें हमारे यहाँ पर इंडिजीनियस जो ट्रीज हैं, जो यहाँ के मकामी दरख्त थे, उनकी बहुत बड़ी तादाद थी, जिसमें मैं आपको नाम गिनवाऊँ कि बरगद था, उसमें नीम था, उसमें इमली थी, अब तो दिखाई नहीं देते, वो सारी काट दी। दूर दूर। और आपको सबसे मैंने उस पर बहुत काम किया है, आप भी करें उस पर। एक पौधा है उसका नाम है कोनोकार्पस। कोनोकार्पस जो है वो मैंगो और वो इथियोपिया में लगाया जाता है। हमारे दोस्तों ने क्या किया, उसको वहाँ से इंपोर्ट किया और यहाँ पर 21 लाख पौधे कराची में लगाए हैं। उस पर 3 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट था। मेरा दावा है कि उसको निकालने के लिए हमें 10 अरब रुपए चाहिए और वो बहुत ज़्यादा नुकसानकार है। उसका मैं आपको एक नुकसान अगर बता दूं कि उसके जो पत्ता है उसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है, वो पत्ता जहाँ गिरेगा किसी और दर्द को होने नहीं देगा। उस पर कोई जो हमारे दोस्त कीड़े हैं वो नहीं आते, उस पर कोई परिंदा घोंसला नहीं बनाता। नुकसानदेह है। और क्यों यहाँ पे लेकर क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया था कि उसके अंदर जो आप अगर नीम के फॉर एग्जाम्पल 100 पौधे लगाएंगे तो उसमें से 30 होंगे या 40 होंगे, मगर इसको कोनोकार्पस को आप 100 लगाएंगे तो 105 लगेंगे। यानी कि इसकी जो है ना 2-4 और पौधे निकल आएंगे इसमें। तो एक तो ये था, दूसरा ये कि जल्दी ये ग्रीन हो जाता, बड़ा हो जाता है। अभी लोग कहते हैं ग्रीनर कराची, तो मैं इसको कहता हूँ ये ग्रीनर कराची नहीं है, ये सब्ज सहरा है कि सहरा बनाते जा रहे हैं हम, अपने इंडिजीनियस ट्रीज को काटते जा रहे हैं। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि जो आपकी बैंक्स है वो कराची के एयर पोल्यूशन में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। कहते हैं भाई 50,000 रुपये दो, आप गाड़ी ले जाओ। अब जो अफोर्ड ना भी कर सकते हो उसने 50,000 रुपये दिए और गाड़ी ले आया। अब आपने रोड तो बना दिए हैं, आप कराची के अंदर देखें, ये तो जमशेद नसरवान जी के दौर से जो है इतने बड़े बड़े रोड बने थे, हमने सिर्फ उसको मेंटेन करना था। अगर हम रोड एक बार अच्छा बना दें, जैसे कि शारा फैसल है, अर्ली 70s में बना है, मिड 70s में, अभी तक आपने उस पर कभी भी रिपेयर होते कहीं भी नहीं देखी होगी, क्योंकि वो बेहतरीन बना हुआ है। इसी तरह हम मुख्तलिफ रोड अगर अच्छे बना दें और ट्रैफिक का मास ट्रांजिट अगर हम बनाएं, उसमें सर्कुलर रेलवे से लेकर उसमें अगर हम डबल डेकर बसेस चलाएं, उसमें हम अगर इस तरह के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको अगर हम वो करें और साइकिलिंग को फरोग देना, साइकिलिंग यहाँ पर कोई करेगा तो वो तो टीबी का पेशेंट हो जाएगा, क्योंकि उसकी इतनी हवा खराब छिड़ जाएगी। एक तो पहली बात ये, तो हमारे यहाँ एक दूसरा ये है कि उसको हर गाड़ी वाला टक्कर मारेगा और वो 2 दिन चलाएगा, तीसरे दिन नहीं बचेगा वो ना। तो एक तो चीज़ ये है, साइकिलिंग भी होनी चाहिए, मगर हमारे यहाँ क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और ह्यूमिडिटी भी है कराची के अंदर। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला दें, कोई बड़ी गाड़ी हो जिसके अंदर एयर कंडीशन वाले लगी हो और उसके अंदर 200 लोग 150 लोग। हमारा अभी हम और आगे बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा हो रहा होगा कि किस तरह हम एनवायरनमेंट को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं और इससे बचने के लिए क्या क्या कुछ है। अभी प्रोग्राम में बहुत कुछ है, आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए thelifetv.tv। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हेलो सलाम एंड वेलकम, मैं हूँ आपकी होस्ट जनाम भाग। आज की सुबह में बहुत खुश आमदीद। मैं आपको मिलवाऊंगी अपने गेस्ट से जो मेरे साथ रोज़ होते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट में।
मंजूर रहमान साहब। दहशत गर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त लगता है कि हमारा विरसा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट खत्म होने जा रहा है, हमारा दूसरा सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें है पकड़ा है क्या। अपनी कोई रेसिपी जो वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे थर्ड सेगमेंट में हम बुलाते हैं अपने गेस्ट। मांगू मैं खुदा से हर पल खुशियाँ, फिरता हूँ दर बदर। क्या बात है भाई। दिन का आगाज अगर मीठी चीज से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है, और मीठी मीठी बातों से और तो तभी अच्छी होती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लाइव टीवी जरूर देखा करें। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है, और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है, और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, खद्दी नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है, और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी ईद पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पे भी पहन सकते हैं, और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asya Malik? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asya Malik. Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour.
I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. And goes. Got it! Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula One. Keep watching livetv.tv. And next weekend, I'll bring you some latest news from the sports world. हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एंजॉय करें और वापस आए मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। वीकेंड फॉर मी इज लाइक शॉपिंग, हैंग आउट विद फ्रेंड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anam Haq saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching the live. वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साल्टा प्रणाम ऑन www.thelifetv.tv पर। हमारे फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कीजिए और उस पर अपनी राय दीजिए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, प्रोग्राम में आप और क्या कुछ देखना चाहते हैं या आप किसको लाना चाहते हैं प्रोग्राम में या आप खुद आना चाहते हैं, तो आप हमारे पेज पर आकर और हमें इनबॉक्स कीजिए। इंशाल्लाह आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमारे गेस्ट आए हुए हैं अम्मार साहब, जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने हमें बड़ी मुफीद बातें बताई हैं प्रोग्राम के दौरान में। मज़ीद भी उनसे जानते हैं कि इन्वायरमेंट में पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने की तवक्का है। जी अम्मार साहब, तो ये बताइए कि आपने बताया कि ये एक ऐसा शोबा है जिसे पाकिस्तान में कोई पजीराई हासिल नहीं हो रही है। आपको फ्यूचर में कुछ ऐसा लगता है कि प्रिंट मीडिया पे आपके आने से या अगर इसको और ज़्यादा पब्लिक में लोगों को अवेयर किया जाए तो इससे फ्यूचर में कोई फ़र्क पड़ने वाला है कि हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड लोग जो हैं वो ज़्यादा तादाद में आए तो लोगों का कुछ माइंड सेट चेंज होगा? देखिए, ये मैंने आपको बताया जैसे कि हमारी ये जो काउंसिल बनी हुई है, नेशनल काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट, उसमें हम लोग इस वक्त 40 दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट हैं फुल टाइम मुख्तलिफ अखबारात और टीवी से। हुआ ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपीय यूनियन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरन्यूज़ के नाम, उन्होंने हमें 2012 में कराची में एक सेमिनार किया था जिसमें कोई 16 जर्नलिस्ट पूरे पाकिस्तान से उन्होंने मंगाए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि आप ट्रेनिंग दें। तो एक तो BBC की जर्नलिस्ट थी लंदन से, एक मैं था, एक और दोस्त थे, तो हमने जो है उनको ट्रेनिंग दी। तो उसकी ट्रेनिंग के आखिरी दिन सब दोस्तों ने मिल के बैठे तो हमने कहा ये इतनी चीज़ें हमने सीखी हैं तो क्यों ना हम इसको कोई एक ग्रुप बना लें। तो हमने ये एक काउंसिल लॉन्च की ना, उस वक्त 16 लोग थे और फिर कुछ लोग और आए और फिर कुछ और आए और ये इस तरह 40 लोग हो गए। अब वो तवातर से वो लोग वो हालांकि अपने इदारे की तरफ से क्राइम या कोर्ट या पॉलिटिक्स या कुछ और बीट्स कर रहे होते हैं
मगर वो हमारी काउंसिल की मेंबरशिप होने की वजह से वो हमारे लिए या अपने इदारे के लिए महीने में 2 से 3 स्टोरीज भी करते हैं। चेंज किया आपको? हाँ, कि आप भी ठीक है, आप किराए में कवर करें क्योंकि वो डिमांड है आपके इदारे की, मगर आप इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ 2 खबरें, 1 खबर महीने में 2 खबरें आप जरूर करें, और वो उन्होंने की हैं और अभी तक कर रहे हैं। उसमें रेडियो के दोस्त भी हैं और टीवी के भी हैं, अखबारात के भी हैं, मैगजीन के भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, ब्लॉगर्स भी हैं, और वो 11 मुख्तलिफ ज़बानों में रिपोर्ट करते हैं। यानी वो सिंधी में, उर्दू में, सराइकी में, बलोची में, बल्ती में, वो पश्तो में, वो मुख्तलिफ ज़बानों में वो रिपोर्ट करते हैं। तो उसमें ये है कि हमारा जो है ना, अब ये जो दोस्त है 40 दोस्त अगर 2 करें तो महीने में 80 खबरें होती हैं। अभी मैंने जैसे आपको अभी बताया कि एनवायरनमेंट की कवरेज जो हमारे नेशनल मीडिया है उसमें 2.8% है। अगर वहाँ पर हम लोग 80 के करीब खबरें हर महीने लगा रहे हों और बहुत इम्पोर्टेंट, फॉर एग्जांपल हमारे मुल्तान के जो मेंबर हैं वो वहाँ पर जो अर्बन पोल्यूशन है उस पर कर रहे हैं, जो सरगोदा से हैं वो दरख्तों की कटाई पर कर रहे हैं, जो पेशावर से हैं वो शहर के अंदर कूड़ा करकट जो है उस पर कर रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ हुंजा बल्तिस्तान के अंदर भी हमारे दोस्त हैं, तो मिट्टी सहरा के अंदर भी हमारे दोस्त हैं, तो कोयटा और ग्वादर के अंदर। हम कितना खुशनसीब मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हर तरह का माहौल, हाँ, तो उसके बावजूद केयर नहीं करते। उसमें केयर नहीं करते। तो उसमें ये है कि अगर ये सब दोस्त करें, मेरे ख्याल में एनवायरनमेंट की अगर कवरेज बढ़ जाए तो मुख्तलिफ मीडिया, टीवी चैनल, अखबारात, मैगजीन उसको रिपोर्ट करना शुरू करेंगे, और जब रिपोर्ट करना शुरू करेंगे तो गवर्नमेंट भी मजबूर होगी और मुख्तलिफ इदारे भी मजबूर होंगे कि इसको ठीक करने के लिए वो कुछ काम कर सकें। तो हमारा जो इस पे स्टैंड है वो ये है कि भाई इस हमारे नेशनल मीडिया के अंदर जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनके अंदर शौक बढ़ाया जाए, उनकी पजेराई की जाए कि वो लिखते हैं, और उनके लिखने के बाद उनकी खबरों को हम फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे रखते हैं ताकि मुख्तलिफ लोग पढ़ें। और मैं आपको बताऊँ हमारी वेबसाइट पर इस वक्त 10,000 के करीब हिट्स जो है महीने में। आप अपने वेबसाइट का भी एड्रेस हमें बताएं। हाँ, एड्रेस हमारा है www.ncejpak.org। ये नेशनल काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट, तो ncejpak.org ये हमारी वेबसाइट है जिस पर हम लोग हमारे दोस्त, उस पर हम 2 किस्म की खबरें रखते हैं। एक तो वो दोस्त जो अपने इदारे के लिए करते हैं और एक वो खबरें जो वो सिर्फ वेबसाइट के लिए करते हैं। तो दोनों साइड की जो चीजें हैं वो हम लोग उस पर रखते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई और ज्वाइन करना चाहता हो, जर्नलिस्ट ना हो लेकिन इन्वायरमेंट पे काम करता हो या इन्वायरमेंट रिलेटेड उसके पास इत्तलात हो, एक आम सा आदमी हो, तो वो आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? साहिदा, मैं आपको बताऊं, जब हमने फेसबुक पे अनाउंस किया था लास्ट ईयर कि हम क्योंकि हम लोग उस वक्त 30 लोग थे, हमें 10 लोग और चाहिए थे। अच्छा। हमने सिर्फ अनाउंस किया था और हमारा जो इनबॉक्स था उसमें 1740 सीवीज आई थी, 1740 पूरे पाकिस्तान से कि हमें मेंबर बनना है, और वो सब छोटे छोटे शहरों से जर्नलिस्ट थे जो बनना चाह रहे थे। और हमारी फिर काउंसिल की जो गवर्निंग बॉडी है वो बैठी, और मैं प्रेसिडेंट तो जरूर हूँ मगर मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ ना, तो मैंने उनके सामने रखा कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, आप देखिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा भाई ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि हमें मेंबरशिप जो है कि आप SMS करें और मेंबर बन जाएं, तो ये तो करना नहीं है। तो हमें इस वक्त भी बड़ा प्रेशर है कि आप हमें मेंबर बनाएं और ये करें। तो 2 दिन पहले हमारी गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ था, उसमें हमने इन्हीं सारी प्रेशर को कम करने के लिए हमने अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग स्टार्ट किया। अच्छा। हम इनवाइट करते हैं दोस्तों को कि हमारे लिए जो भी लिखना चाहें वो info@ncejpak.org पर हमें अगर वो करें, और किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, किसी भी एरिया में कर सकते हैं। अच्छा। किसी भी एनवायरमेंटल इशू पे वो हमने ब्लॉग लिख सकते हैं 700 वर्ड्स तक, जिसमें वो वीडियो भी कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं, फोटो फीचर भी कर सकते हैं। तो हमने आज ही वो अनाउंसमेंट अपनी फेसबुक पे डाली हुई है, क्योंकि हम लोग NGO तो है नहीं ना, हमारे पास पैसे हैं, तो हम लोग ये कि थोड़े से रिसोर्सेज में चाहते हैं। हमने एक वेबसाइट ले ली है और हमने फेसबुक और ट्विटर और उन पे चीज़ें रख ली हैं। तो हम ये जो हमारे ब्लॉग्स हैं इसको हम चाह रहे हैं कि ये लोगों तक पहुंचाएं ताकि सब आम शहरियों में लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे ना उसके अंदर, तो फिर खुद ही वो सब कुछ तो हम बिल्कुल वेलकम करते हैं। कोई भी हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट हो ना हो, वो
NGO का कोई दोस्त हो, वो कोई टीचर हो, वो कोई पब्लिक किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई भी हो, कोई एक घरेलू खातून भी हो सकती हैं जो घर में बैठे सोच रही होती हैं कि हमें लिखना चाहिए और वो उर्दू में लिखना चाहती हैं, उर्दू में वेलकम, सिंधी में, पंजाबी में, किसी भी ज़बान में हमें बिल्कुल आप लिख सकते हैं उसमें। और मैं चाहूँगा कि सब दोस्त लिखें उसमें, और हमने सब उन दोस्तों को इन्फॉर्म कर दिया है जिन्होंने हमें मेंबरशिप के लिए कहा था। तो हमने कहा इनिशियली आप ये करें, क्योंकि मेंबर्स के साथ ना सिर्फ कम्युनिकेशन की जाए 1700 लोगों के साथ, तो मुझे लगता है कि 20,000 रुपये आपको चाहिए महीने में सिर्फ फ़ोन करने के लिए, तो वो पैसे हमारी काउंसिल के पास नहीं है। तो हम जो दोस्त हैं थोड़ा थोड़ा आपस में करके उसको चला रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल खुला हुआ है, जो ब्लॉग लिखना चाहे किसी जबान में किसी भी इशू पे लोग, जब क्योंकि एनवायरनमेंट जो है ना ये जो है लेबर ऑफ लव है ना, ये मोहब्बत वाला काम है, ये दिल से होने वाला काम है। ये इसमें आप जो है ना आपके पास पैसे हो ना हो, आपको गुस्सा आना चाहिए अपनी खराबियों पर, अपनी चीजों पर, अपने आप पर, बुरी बात को बुरी बात हाँ समझना चाहिए। हम लोग आदी हो गए हैं ना कि हर जगह कचरा फेंका हुआ है, हम कहते हैं भाई ये क्या है, ये तो हर जगह है, हर जगह नहीं होना चाहिए ये। तो मेरे ख्याल में हमें अपने माहौल पे अगर सिर्फ गुस्सा आना शुरू हो जाए ना तो भी हम बहुत, तो जो लोग समझते हैं कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए वो हमें लिखें और हम बिल्कुल वो एज इट इज उसको लगा देंगे, वो चाहे किसी के भी खिलाफ लिखें। क्योंकि लोगों को मीडिया से सबसे बड़ी जो शिकायत है कि वो मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ लिखते नहीं, तो वो मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ, यानी मैं क्या नाम लूँ कि मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ नहीं लिखते हैं। आप जिसके खिलाफ चाहे लिखें, उसमें इन्वायरमेंट का मसला हो, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल चीजें नहीं लगाएंगे या कोई और चीजें जो है वो हम नहीं लगाएंगे, प्योरली इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी चीजें हो। क्योंकि हमने कराची के कोस्ट पर हमने मुख्तलिफ इशूज कवर किए थे जिसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस शामिल थे। उन्होंने मैंग्रोव्स को कटा के वहाँ हाउसिंग स्कीम स्टार्ट की, और मैंग्रोव्स जो कि पूरे शहर के लिए फेफड़े हैं, हवा बनाते हैं और साइक्लोन और सुनामी से प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम लोग काट रहे हैं और वहाँ पर घर बना रहे हैं। तो हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमने बिल्कुल एग्रेसिवली इसी तरह लिखा। क्योंकि एनवायरनमेंट में आपको एग्रेसिवली जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं तो सबको इनवाइट करता हूँ कि आप सब दोस्त लिखें और हम भेजें। बिल्कुल बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल पर आकर के बात की। अब हम इसे ब्रेकिंग न्यूज तो कर बिल्कुल सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज कर सकते हैं कि आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि जो लव करता है एनवायरनमेंट से वो आए ब्लॉग, क्योंकि ये सारी मोहब्बत की बात है, ये नेचर से मोहब्बत की बात है और इतना खूबसूरत नेचर है। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान तो बड़ा लकी मुल्क है कि यहाँ पे हर तरह का वेदर हर वक्त अवेलेबल है, हर तरह का, लेकिन इसके बावजूद हम पानी को रोते रहते हैं। हमारे पास कितने ग्लेशियर हैं, कितनी बारिशें होती हैं, दरिया समंदर सब कुछ है, क्या वजह है हमारे पास हर वक्त पानी की कमी क्यों रहती है? आपको क्या लगता है? देखिए इसके पीछे भी मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हर इशू जो है ना वो पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। उसमें ये है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए पानी की, वो नहीं हुई। और उसमें जो एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट है ना वो ये है कि पाकिस्तान के 96 बड़े शहर जो है उनका कचरों का पानी जो है वो दरिया से मिल जाता है। ये आपको अंदाजा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से लेकर सब शहरों का, लाहौर का लेकर मुल्तान का लेकर फैसलाबाद सरगोदा से लेकर ये सारा का सारा पानी जो है दरिया सिंध में फेंकते हैं। यानी हम समंदर और दरिया को हम लोग गटर नाला समझते हैं कि सारी चीजें वहीं फेंकनी चाहिए। तो जो पानी की जो पोजीशन है, जो पानी की जो क्वालिटी है वो बहुत ही गंदी है। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के अंदर अगर आप अदीब रिजवी साहब से जाकर पूछें कि आपके यहाँ किडनी के पेशेंट क्यों आते हैं, वो कहेंगे सिर्फ एक ही वजह है, वो है पानी। और पानी पाकिस्तान का कोई भी एक ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर आप समझें कि पानी जो है वो टेप वाटर को पीने के काबिल हो। यानी आप बॉटल वाटर को छोड़कर बाकी कोई पानी जो है पीने के काबिल नहीं रहे। तो दूसरी चीज़ ये कि लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से वेदर पैटर्न चेंज हुआ है हमारा। मौसमें जो है जब बारिश होनी थी पहले हमारे यहाँ जून जुलाई में स्टार्ट होती थी, अब सितंबर अक्टूबर में लेट हो गई हैं। कुछ कहते हैं कि साइक्लोन जो हमारे यहाँ मानसून वेदर था वो एक्सट्रीम हो गया है, और तवातर से 2010 से जो है वो साइक्लोन आ रहे हैं।
اس سال تو نہیں آیا مگر یہ کہ 3 سالوں سے آتے رہے. تو یہ چیزیں ہیں. دوسری یہ کہ درختوں کی جو کٹائی ہے نا وہ سب سے بڑا ریزن ہے ان موسمی جو تغیر کا جو سبب بن رہی ہے. وہ درختوں کی کٹائی جو ہے وہ سب سے بڑا سبب ہے, کیونکہ ہم نے اوپر جو ہے پہاڑوں سے درخت کاٹ لیے, ہم نے انڈس کے جو کچا کا ایریا تھا اس کے دونوں سائڈس پر اس کو کاٹ دیا, ہم نے مینگروز کو کاٹ دیا, ہم نے اربن فارسٹ ختم کر دیا, ہم نے ایگریکلچر فارسٹ ختم کر دیا, ریورائن فارسٹ ختم کر دیا. اس کی وجہ سے سارے کے سارے حالات آپ اندازہ کریں کہ جو اگر ہم درخت کاٹ دیتے فار ایگزامپل کراچی میں اگر درخت جتنے تھے اتنے اگر ہوتے تو حالات کچھ اور تھے. صرف 1 ڈگری سینٹی گریڈ اگر بڑھ جاتا ہے نا آپ کا تو آپ کو اے سی آن کرنا ہوتا ہے, آپ کو پنکھا لگانا, اپنے آپ کو کولنگ, لائٹ کا ایشو ایک الگ, لائٹ ہم پاور کرائسس سے گزر رہے ہیں. وہاں پر اگر ٹیمپریچر بڑھ جائے تو آپ کو صرف ٹھنڈا رکھنے کے لیے گھروں کو آپ نے جو کام کرنے ہوتے ہیں اس پر سب پیسے لگتے ہیں نا. تو 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھنے سے آپ کا بہت بڑا پیسہ جو ہے نا اس پہ خرچ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. جیسے گھروں میں درخت لگانے چاہیے, اب ہم بڑے لیول پر تو اگر نہیں کر سکتے کم از کم اپنے گھروں کو تو ہم ایسا کر سکتے ہیں نا کہ بیلیں ایسی لگائیں گھروں کے اندر کہ چھتوں کو ٹھنڈا کرے وہ, جس سے گھر میں ٹھنڈک پیدا ہو. مگر ہمیں یہ کہ ہمیں جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ بینکس جو ہے نا وہ گاڑیاں دیتی ہیں. اب ایک سروے تھی جس میں آغا خان یونیورسٹی اور 2-3 اور ادارے تھے, انہوں نے سروے کیا تھا کہ اگر ایک سگنل پر 1 منٹ کے لیے اگر 100 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں تو سب کے انجن آن ہوتے ہیں تو 1 اسکوائر کلومیٹر میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. اور وہ پھر گرم جو ہوا ہے وہ ہوا میں اڑتی اڑتی, جس کو ہیٹ پاکٹس کہتے ہیں, ہیٹ آئلیٹس کہتے ہیں, وہ شہر میں سب جمع ہوتے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا اوور آل ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے ہم نے بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں بجلی بہت چاہیے, اس کی وجہ سے ہمیں مختلف چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم لوگ اس کا صرف ایک ہی حل ہے, وہ یہ ہے کہ ہم چوکوں پہ, روڈوں پہ, فٹ پاتھ پہ, ہم نے شاپنگ پلازا کے آگے, دکانوں کے آگے, روڈ کے سائڈ میں, خالی جگہ پہ, پارکس میں اگر ہم درخت لگائیں, اور وہ بھی انڈیجینس درخت جو کہ بڑے سے لوگ گرو کرتے ہیں, اگر وہ کاربن سنک ہوتے ہیں, بہت زیادہ کاربن جو ہے ابزارب کرتے ہیں, اور ساتھ میں وہ پانی بھی اسی لیول سے نکالتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم درخت لگائیں تو ہمارے جو بھی شہر ہیں, کراچی سے لے کر پشاور تک جو بھی شہر ہیں, سب لوگ اگر تھوڑا تھوڑا یہ کام کریں, اس میں شہری کریں, مختلف شہریوں کے گروپ کیوں نہیں ہے بھائی. ہم لوگ بم پھٹتے ہیں تو پریس کلب کے آگے آ جاتے ہیں, جب درخت کوئی کٹتا ہے, میں آپ کو بتاؤں سندھ اسمبلی کے سامنے پچھلے ہفتے 150 سال پرانا برگد کا درخت انہوں نے کاٹا ہے. یہ اتنی بڑی بریکنگ نیوز تھی, میرے خیال میں ہم پوری نیشنل میڈیا کو کور کرنا چاہیے, 2-4 اخبارات میں وہ لگا ہوگا. تو اس کو جو ہے نا اس طرح اگر ہم کور کریں, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر ہم روڈوں پہ نکلیں درختوں کو بچانے کے لیے, تو یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. جیسے سیکریٹریٹ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا وہ تنخواہیں نہیں ملی تھی ایک ادارے کو, تو انہوں نے جا کے سارا کچرا پھینک دیا تھا. تو انہوں نے بڑا شور مچایا وہاں کے لوگوں نے کہ بڑا تعفن پھیلا ہوا ہے آفس کے سامنے. نہیں مطلب درختوں پہ کیوں نہیں لوگوں کو شور کرتے, اس پہ شور کرتے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ درختوں کی سلیکشن صحیح کی جائے, دوسرا یہ ہے کہ جگہیں جو ہے کہاں کہاں لگانا چاہیے, کون سے درخت اور کب لگانے چاہیے. اب یہ بارشیں ہوئی ہیں, اس کے بعد ابھی موسم میں میرے خیال میں ہم سب دوستوں کو کم سے کم 1 درخت جو ہے زندگی میں لگانا چاہیے, تو وہ بہت بڑا کام ہوگا. لیکن اس پہ ہم لوگ توجہ نہیں دیتے نا. ہمیں توجہ دینے کے لیے وہ موضوعات ہوتے ہیں ہمارے پاس جو نیگیٹیوٹی ہماری زندگی میں لے کے آ رہے ہیں. جبکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ نیچے سے قریب ہوتے ہیں تو ہم خود پازیٹیو سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اور پازیٹیو سوچنے سے ہوتا ہے کہ ہمارے اور بھی بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں خود بخود. لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. نہیں میرے خیال میں ہم اسکولس کے اندر یہ میڈیا اگر ہماری اس پہ تھوڑا سا کام کرے, لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس دے کہ امپورٹینس کیا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا جو کوسٹ لائن ہے, یہ یعنی انٹرنیشنل کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 50 سال کے بعد ہم کتابوں میں پڑھیں گے کہ کئی سال پہلے نا ایک جانور ہوتا تھا جس کو مچھلی کہتے تھے, یعنی مچھلی ختم ہو جائے جس طرح ہم کر رہے ہیں. کراچی شہر کی جو 30 ملین کے قریب پاپولیشن ہے, اس کا پورا جو سیویج کا پانی ہے وہ ہم سمندر میں پھینک دیتے ہیں. شاپرز جو ہم یوز کر رہے ہیں شاپرز, ہر چیز جو ہے انڈسٹریل ویسٹ جو ہے اس میں ٹینڈیز جو ہے کیمیکل والا ویسٹ جو ہے وہ بھی وہاں اس میں جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم ختم کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس پہ ہمیں کام کرنی ہے.
चाहिए। ज़रूरत है। अच्छा, एक बात और भी है, इशू पे हम बहुत सारे मौज़ूआत पे तो ये बोल देते हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं करती या गवर्नमेंट को करना चाहिए, उसकी गलती है, लेकिन बहुत सारे हमारे अपने भी पब्लिक की भी बड़ी खामियां हैं। जैसे बहुत सारे पिछली गवर्नमेंट ने बहुत सारे हर इलाके में छोटे छोटे गार्डन्स बनाए, चाहे वो कैसे भी थे, लेकिन उन गार्डन्स को जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने मेंटेन करके दिए, उनमें तरफ भी थे, उनमें सीटें भी थी, उनमें पानी का भी था। लेकिन अब आप वक्त के साथ साथ देखें, हम लोकल गवर्नमेंट तो कोई है नहीं इस वक्त काम करी, तो वो सारे गार्डन्स तबाही का शिकार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उनमें जाएं तो डस्टबिन तो उनमें या तो है नहीं नाम को, या है तो लोग उन्हें यूज़ नहीं कर रहे होते, और उनका बेड़ा गर्क किया हुआ है। वो गवर्नमेंट ने तो नहीं किया है ना, वो तो हमारी आम पब्लिक है। आम पब्लिक ये कब समझेगी कि ये सारी चीज़ें हमारी अपनी हैं और हमें खुद इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो मुझे नजर आता है कि हमें कोई एक बंदा चाहिए जिसपे हम ब्लेम कर सके ना कि ये बमलास में फॉरेन हाथ थे, गैर मुल्की लोग शामिल थे और चले उसमें थे। पान की थूकने में कौन सी गैर मुल्की हाथ है ना? क्या ये तो हमारे हाथ में ना कि हम उसको कहीं किसी जगह पे ना थूके या हम कचरे को ना थूके, या हम अपने बच्चों को अगर समझाएं कि आप जो है वो इस तरह बड़े भी ऐसी हरकतें हाँ, बड़े भी ऐसे करते हैं। आप देखेंगे कि आप अगर रोड पे खड़े होकर कोई दरख्त हो जो नीचे हो, आप देखेंगे लोग आते जाते हैं उसके पत्ते तोड़ के जाएंगे। एक आम सी बात है भी, ये जानदार है। ये आप ऐसे है कि आप किसी का कान जो है ना वो ऐसे हमारा भी, हम एक और बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मेरा खुद ये मौजू है तो मुझे इस पर बात करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। हम लोग मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद और फिर हमारे से मज़ीद जानेंगे कि किस तरह हम अपनी इन्वायरमेंट को खुद अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं और वह खुद किस तरह उसको बचा सकते हैं। रहिए मेरे साथ और देखते रहिए thelifetv.tv। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Amr Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. Assalamu alaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour.
I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. And goes. Got Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. व्यूअर्स, लाइव की सुबह में आपको मैं आपकी होस्ट है खुशामदीद कहती हूँ मैं आप लोगों के लिए और अपना प्रोग्राम बेहतर से बेहतर किस तरह बना सकती हूँ www.facebook.com/thelifetv.tv। दिन का आगाज अगर मीठी चीज से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है, मीठी मीठी बातों से और तभी मेरे साथ रोज होते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट। हर क्रिमिनल के पीछे कोई ना कोई बड़ा सियासतदान मौजूद है। गेस्ट की तरफ उनसे करेंगे वही रोज की तरह पॉलिटिक्स पे बातें। कैफरे किरदार तक आवाम इन सियासतदानों को ही पहुंचाएगी इंशाल्लाह। कि माशरे में हमें खुश रहने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। धमाकों के लिए के लिए मजीद आगे तैयार रहें। दहशतगर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त हो सकता है कि हमारा विरसा हो। अपने सेकंड सेगमेंट में जिसमें है आज पकड़ा है क्या। आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारे सेकंड सेगमेंट में। वेल टाइम हुआ है हमारे थर्ड सेगमेंट का, इसमें मैं आपको अपने गेस्ट से मुतारिफ करवाती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, सुनो पछताओगे ये बस्ती उजाड़ के। और बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं कश्मीर से पूछूंगी। बड़े बूढ़े कहते थे हमारे क्या ना मेहंदी शर्माती है तो है ना रात में लगानी चाहिए ब्राइडल की हमेशा। कि जब ब्लास्ट हो रहा है और लोग वहां से भाग रहे हैं और आप उस जगह पे भाग आगे चले, अपने ट्रैक पर चले, फोकस करके चले। मतलब चाय पी के आ जाए हम लोग। हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें जो कि है www.facebook.com/thelifetv.tv। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लाइव टीवी जरूर देखा करें। हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एंजॉय करें और वापस आए हैं, मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। वीकेंड फॉर मी इज लाइक शॉपिंग, हैंग आउट विद फ्रेंड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। Do your feedback on our FB page that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching the live. वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं द livetv.tv पर प्रोग्राम लिविंग लाइफ विद साजिदा। मेरे आज गेस्ट हैं अम्मार साहब जो जर्नलिस्ट हैं और आपको बता रहे हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ पर बात हो रही है हमारी।
اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ بہت ساری باتیں خود ہماری اپنی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ماحول کو تباہ کرنے میں ہمارا اپنا ہاتھ بھی ہے. اس سے کس طرح بچیں, کس طرح اپنے ماحول کو بچائیں, یہ جاننا بہت ضروری ہے, اور اسی بارے میں ہم لوگ اور باتیں کرتے ہیں. جی عمار صاحب, ایک تو آپ نے بتایا کہ میڈیا اس طرح کام نہیں کر رہا, لوگ اس طرح اویئر نہیں ہیں. اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ کیا رسپانسبل صرف گورنمنٹ ہے, تو گورنمنٹ کیوں نہیں ایشوز پہ توجہ دیتی کہ وہ لوگوں کو یا تو فائن کرنا شروع کرے, جیسے بڑی بڑی شاپس ہوتی ہیں, شاپنگ ایریاز ہوتے ہیں, وہ لاکھوں اربوں روپے کی شاپس تو پرچیز کر لیتے ہیں, لیکن کیا ایک کچرے کا ڈبہ نہیں رکھ سکتے ہیں نا, تو ان کے اوپر فائن ہونا چاہیے, یا کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے ان کو یہ احساس ہو کہ وہ اپنے ماحول کو تباہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو چیزیں بیچ رہے ہیں, تو کچھ ان کی خدمت کے لیے بھی کریں نا. پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, گورنمنٹ تو خیر پہلے یہ تھا کہ جب برٹشر تھے یہاں پر تو ان کا ایک فارمولہ تھا, وہ یہ تھا کہ آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو. اس کو پھر انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا, انہوں نے کہا کہ لوگوں کو مصروف رکھو اور حکومت کرو. آپ اگر پچھلے 10 سال دیکھیں 2000 سے لے کر 99 سے لے کر, تو آپ کو ہر 15 دن کے بعد ایک ایسا ایشو لگے گا کہ آپ کو لگے گا کہ پورا ملک اس سے ہل جائے گا, اور 10 دن کے بعد آپ کو وہ ایشو یاد ہی نہیں ہوگا, کچھ اور ہوگا, پوری میڈیا اسی پہ لگی ہوئی ہوگی. تو اب یہ فارمولے چینج ہو گئے ہیں, اب یہ ہے کہ آپ بزی رکھو اور حکومت کرو. تو اس میں میڈیا جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتی ہے, اور انہوں نے اس طرح کے سارے جو چیزیں ہیں اتنا ہائپ کریٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بس پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, حالانکہ 5 دن کے بعد وہ ایشو ہوتا ہی ہے. 5 دن بعد کیا صبح اسٹرائک کی کال ہوتی ہے, 4 بجے سب کچھ ختم ہو چکا ہے. پہلے یہ کہ اسٹرائک بہت بڑی بات ہوتی تھی, اب ہماری ٹی وی نے اس کو اتنا وہ کر دیا ہے کہ لوگ یوزڈ ہو گئے. اب میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں ایشو کی عمر 3 دن ہے, اس سے بڑی نہیں ہے, کتنا بھی بڑا ایشو کیوں نہ ہو, تو لوگ سمجھتے ہیں یہ سیٹل ہو جائے گا. تو ایک جو چیز ہے نا میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ میڈیا کے لوگوں کی اگر ٹریننگ ہو, ان کو صرف امپورٹینس بتا دی جائے کہ نیچر کی امپورٹینس ہے کیا, اور اس کے حوالے سے ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے, اس کو بہتر کرنے سے ہمیں فائدے کتنے ہوں گے, اور یہ اگر چیزیں ہم صرف ان کو سمجھا دیں, اور میڈیا مالکان اگر اپنے جرنلسٹ کی ٹریننگ کریں, ٹریننگ نہ کریں, صرف ان کو جانے دیں کہ وہ مختلف پروگراموں میں جائیں, ٹائم تو دینا کہ وہ ایکسپرٹ سے بیٹھیں, کیونکہ انوائرمنٹ کا جو یہ شعبہ ہے جرنلزم میں, یہ بہت ہی لہنجی ہے. یہ پولیٹیکل بیٹ کی طرح نہیں ہے کہ آپ گئے اور آپ اسٹیٹمنٹ لے کر آ گئے اور آپ نے بریکنگ چلانا شروع کر دی. اس میں آپ نے سمجھنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کراچی سے اگر درخت ختم ہو رہے ہیں تو آپ نے گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی پوچھنا ہے, ایکسپرٹ سے بھی پوچھنا ہے, آپ نے گراؤنڈ جو بندہ ہے اس سے بھی پوچھنا ہے, بالکل ہر جگہ سے آپ نے پوچھنا ہے. آخر میں ایک چھوٹی سی اسٹوری نکلے گی. تو ہمارے ٹی وی والے اس کو ٹائم دینا نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ جرنلسٹ کام کر لیں, کیونکہ انوائرمنٹ کی ایک اسٹوری کے لیے آپ سے 2 سے 3 جو ہے دن چاہیے آپ کو. تو ایک تو ٹی وی والا یہ ہے کہ میری جو ڈیمانڈ ہے آپ کی ٹی وی سے توسط سے, وہ یہ ہے کہ سب ٹی وی اگر اپنے ہاں انوائرمنٹ کی بیچ کو ڈکلیئر کریں کہ یہ بیچ ہے, اور ایک رپورٹر رکھیں اور اس کی ٹریننگ کریں, اور اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں کہ بھئی آپ 2 دن 3 دن لو اور سکون سے آپ کر کے آئیں. اس کو اگر کریں گے, بھلے آپ 4 منٹ کی 3 منٹ کی چلائیں, زیادہ ٹائم نہ دیں انوائرمنٹ کو اگر آپ سمجھتے ہیں, مگر روزانہ ایک خبر جو ہے وہ دے سکتے ہیں. یہ ہم اپنی ہیڈ لائنز کے اندر کہ ایک جو ہے بلی وہ پینٹنگ کر رہی ہے, اس کو بھی تو ہم دیتے ہیں نا کہ ہاتھی جو ہے وہ پینٹنگ کر رہا ہے. تو اگر ہم اس میں انوائرمنٹ کی, اپنے ہی ملک کی انوائرمنٹ کی خبروں کو اگر 2 منٹ دے دیں, تو میرے خیال میں بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا کہ اگر آپ اس کو دے دیں. تو میری صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ سب ٹی وی چینلز اگر ایک بیٹ رکھیں, ایک رپورٹر رکھیں, اور اس کو سیکھنے کا موقع دیں کہ وہ سیکھے, اور پھر وہ ٹائم دے کہ وہ کور کر کے آئے, تو بہت سے ایشوز حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ گورنمنٹ دیکھیں نا, آپ نے گورنمنٹ کا کام آسان کیا ہوا ہے. آپ نے سارا دن دکھانا ہے کہ بھئی اتنے ٹارگیٹ کلنگ میں مارے گئے, اتنے ایک ہی طرح کی چیزیں مائنڈ الجھ کے رہ جاتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں اور کچھ نہیں ہوتا, اور کچھ بھی نہیں ہوتا نا. ٹورزم ہے, بس سارا دن جو ہے وہ گنائی رہتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کے دوسری اسپیکٹ جو ہے اس پر بھی اگر کام ہونا چاہیے, تو میرے خیال میں وہ بہت بڑا ہوگا. کیونکہ آپ کے کینسر سے پیشنٹ سے لے کر ڈیزیز کی آپ ایک پوری ایک لائن ہے, ایک لسٹ ہے. یہ ساری چیزیں انوائرمنٹ کی خرابی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. صحیح بات کہ اس کو پکڑیں تو بہت ساری چیزیں پکڑ میں آ جائیں.
تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کیونکہ ہم لوگ بالکل آخری اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے. اب تو ہماری بقا کا مسئلہ ہو گیا ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے. اب اور کیا ہوگا, یہ اتنے زلزلوں سے لے کر اتنے سیلاب سے لے کر گرمی کی شدت اور حدت اتنی بڑھ گئی ہے اور بارشیں اتنی شدید ہو گئی ہیں اور جو سردیاں ہیں اس کا ٹائم پیریڈ بڑا ہو گیا ہے اور ہمارے گلیشیئرز جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پگھل رہے ہیں, اب یہ ہو رہا ہے, عطا آباد جیسے جو ہے وہ انسیڈنٹ ہو رہے ہیں. اور ایسی کنڈیشن میں آپ اسلام آباد میں جائیں, اسلام آباد میں گرمی کا کبھی کنسیپٹ بھی نہیں تھا. ابھی آپ یعنی وہاں گرمی ہوگی, وہاں ایئر کنڈیشن چلانے پڑتے ہیں, یعنی جو کہ ایک ویل ڈیزائنڈ سٹی تھا. تو اس حالت میں میرے خیال میں ہمیں ابھی جاگنا ہوگا اور ہمیں اس کو سیریس لینا ہوگا. اور اس میں کیونکہ انوائرمنٹ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس میں میرے خیال میں ہم لوگ الگ الگ بیٹ کریں اگر کہ بھائی اربن پولیوشن پر کچھ کوئی اور بندہ ہوگا, کلائمیٹ چینج پہ کوئی اور ہوگا, جنرل انوائرمنٹ پہ کوئی اور ہوگا, اور اس طرح اگر ہم اس پہ ڈاکیومنٹریز بنائیں, اپنے لوگوں کو اویئر کریں, گورنمنٹ کو اویئر کریں, میڈیا کو اویئر کریں, تو میرے خیال میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک آپ نے تو بہت ہی واسٹ پورا بتا دیا کہ اس طرح ہونا چاہیے. اس وقت جو ہمارا یہ ٹی وی شو ہے یہ گھر میں رہنے والی خاتون بھی دیکھ رہی ہوں گی اور وہی سوچ رہی ہوں گی کہ یہ سب تو بہت بڑے بڑے کام ہیں, میں تو نہیں کر سکتی. تو آپ بتائیے کہ گھر میں رہنے والی ایک عام سی عورت انوائرمنٹ کے لیے کیا کر سکتی؟ آپ کچھ نہ کریں, ایکسٹرا لائٹس اگر بند کر دیں, پانی کے ذہن کو بند کر دیں, کیونکہ جو لائٹ ہے آپ سمجھیے یہ جو بلب ہے نا, یہ بلب بجلی کے میٹر پہ نہیں چلتا, یہ پانی پر چلتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں بجلی ہائیڈرو سے بن رہی ہے. تو یہ آپ جتنا بھی بلب یوز کر رہی ہیں اس کو ہم اگر بچائیں, یہ کام خاتون گھر میں کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو ٹرین کریں اگر کہ بھئی ایکسٹرا لائٹس نہ لگائیں. اور میرے خیال میں انوائرمنٹ جو ہے نا وہ دل کا معاملہ ہے, اس میں اگر آپ کو صرف ریئلائز ہو جائے کہ بجلی بچانا ہمارے لیے بہت اہم ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں نا بل تو میں دے رہا ہوں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ آپ کا نہیں ہے, یہ نیچرل ریسورسز ہیں, یہ آپ کا نہیں ہے مسئلہ. آپ پیسے دے کر جو چاہے کر رہے ہیں, یہ تو نہیں ہے نا. وہ یہ اتنی بڑی جو ہے نا نعمت ہے کہ اس کو ہم اس طرح ضائع نہیں کریں. ایک کام یہ کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ پانی کو بچائیں, ٹوٹی کو کھلانا چھوڑیں پانی. اب لوگ کہتے ہیں پانی تو بہت آتا ہے, اس میں کیا ہے, اگر کوئی ٹوٹی کھلی ہوئی تو بلکہ ایک اور ایک وہ اپنی کار دھو رہے ہیں, باہر درختوں میں پانی ڈال رہے ہیں, ادھر ادھر پانی سارا ضائع ہو رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, پانی بہت آتا ہے. نہیں, میں کہتا ہوں دیکھیں کار بھی دھوئیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, مگر اس سے زیادہ جو پانی ہے نا جو صبح ہم برش کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم ضائع اور ہم شیو کر رہے ہوتے ہیں اور جو نل کھلا ہوتا ہے, وہ اب کراچی کے اندر جو اگر سب لوگ شیو کر رہے ہوں صبح میں اور برش کر رہے ہوں اس وقت نل کھلا ہوا ہو, تو آپ اندازہ کریں کتنا پانی. ایک کام اگر یہ کریں, اور تیسرا کام سب سے اہم یہ کریں کہ بچوں کو اگر اویئر کریں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ انوائرمنٹ ہوتا کیا ہے بیٹا, درخت ہوتا کیا ہے, بجلی کو کیوں بچانا چاہیے, اور کوڑے کرکٹ کو کہاں پر پھینکنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے, اور انوائرمنٹ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ میرا ریلیجن جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے. بالکل, آپ جب انوائرمنٹ کو ریلیجن کے طور پر لیں گے تو اس کی رسپیکٹ جو ہے آپ کی دل سے کریں گے. اچھا, اس کے لیے کچھ ایسے کارٹونز وغیرہ ہونے چاہیے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اور چیزوں پہ بھی بنائے جاتے ہیں, لیکن اردو زبان میں, کیونکہ وہی ہماری سب سے پاپولر زبان ہے, ہر ایک سمجھ جاتا ہے. اردو زبان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بچوں کو دکھا دی جائے, انہیں سمجھا دی جائے کہ یہ پانی ہے, یہ زندگی ہے, اسے بچاؤ, یہ تمہاری بقا کے لیے ضروری ہے. اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. ہماری سوسائٹی میں جو ریس پریورٹی ہے نا وہ بچوں کو دی جاتی ہے. بس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بچہ بیٹھا ہوگا تو بڑا آئے گا, اس کو کہا اچھا بچہ بیٹھا آپ اٹھ جاؤ, یعنی وہ اس کو ہم فرض نہیں سمجھتے ہیں. ہم لوگ ترکی سے لے کر یورپ کے ڈراموں کو ڈب کرتے ہیں اردو میں, تو کیا مکی ماؤس کو اردو میں ڈب نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم لوگ پریورٹی بچوں کو دیتے ہی, حالانکہ اس سے کماتے بھی ہیں, کماتے بھی ہیں. ہاں بالکل, ہم لوگ صرف کچھ نہ کریں, بچے چھوٹا بھی ہندی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم لوکل زبانوں میں اگر کریں, سندھی میں, پنجابی میں, پشتو میں, اردو میں کریں, اردو میں کریں اگر تو بھی وہ چلے گا, مگر لوکل زبانوں میں بھی اگر کریں تو, مگر ہم بچوں کے لیے میں نے جیسے بتایا پریورٹی لسٹ میں نہیں ہے. ہم اس کو فرد جو ہے نا وہ ایز اے معاشرے کا ایک پرسن نہیں سمجھتے. اور پھر وہی ہے کہ آپ اگر جو ہے کانٹے بوئیں گے تو کل پھول تھوڑی کھلیں گے, اب وہ بڑے ہوں گے تو پھر وہ کیا ہوگا. تو یہ ہے کہ میرے خیال میں بچوں کو ہمیں پریورٹی دینی چاہیے, ان کو مختلف, ان کو یعنی پہلے تو معاشرے کا ایک اہم فرد سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارا سرمایہ ہے, فیوچر ہے ہمارا, وہ سب کچھ وہی ہے نا. تو ایک تو پہلے ان کو امپورٹنس دے, پھر ان کی ٹریننگ کریں. انوائرمنٹ کے حوالے سے
इखलाकियात से लेकर हर चीज की मेरे ख्याल जरूरत में है। सबकी करनी है, मगर इन्वायरमेंट अगर हम उसकी करें बहुत तो ज़रूरी। 20 सालों के बाद बहुत बड़ा एक चेंज हम देख सकते हैं। हमारा आप मुल्क से बाहर भी कई दफ़ा गए हैं, मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा, तो आपको क्या फ़र्क लगता है कि क्या हम उनके जैसे इंसान नहीं हैं कि हमारे साथ इस तरह का सलूक हो रहा है? उनके यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों के रूल्स होते हैं और वो लोग रूल्स को मानते भी हैं। हमारे यहाँ क्या वजह है? रूल्स तो बनते हैं लेकिन लोग उनको मानते क्यों नहीं है? हमारे अंदर ख़राबी कहाँ पर है जिसकी वजह से हमारे यहाँ रूल्स होते हैं? ट्रैफिक के आप रूल्स देख लें, सिग्नल बंद होता है और आप अगर रुके हुए हैं तो पीछे से आपको हॉर्न बजते हैं कि चलें, जबकि किसी भी आप तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएं तो हॉर्न बजाना समझ लें कि आपने उसको बहुत बुरा भला कह दिया, इस तरह की बात है ना। हमारे यहाँ इस बात को भी किया जा रहा होता है कि हॉस्पिटल के बाहर लिखा होता है यहाँ हॉर्न बजाना मना है, लेकिन हम वहीं पे हॉर्न बजा रहे होते हैं, ख्याल ही नहीं करते हम इन चीज़ों का। क्या वजह है? हमारे साथ क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम उस तरह के इंसान नहीं बनाए गए, या हमारे साथ क्या ऐसा मसला है कि हम उसूलों को ही नहीं मानते? देखिए मैं बहुत से ममालिक घुमा हूँ और जो मुझे चीज़ नज़र आती है वो ये है कि एज ए नेशन हम बड़ी ज़िद्दी कौम हैं, हमें जिस काम के लिए मना किया जाता है वो हम ज़रूर करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो ये है कि हम अपना गुस्सा जो है वो और कुछ नहीं होगा तो सिग्नल तोड़ के निकाल देंगे, हाथ बजा के निकाल देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तो हम ट्रैफिक वाले से बहस करके जो ना उस गुस्से को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। आप देखें जब आपके यहाँ इकोनॉमिकल क्राइसिस हो, पैसे ना हो, जॉब्स ना हो, आपके यहाँ एनवायरनमेंट ख़राब हो, जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो। मैं आपको एक मज़े वाली बात बताऊँ, अभी एक रिसेंट स्टडी छपी है कि दुनिया के अंदर जिन जिन ममालिक में टेम्परेचर बढ़ा है वहाँ क्राइम का रेशो भी जो है वो बढ़ा है। तो एक तो बड़ी सबब हमारी ये है कि हमारे यहाँ एनवायरनमेंट, हाँ आप अगर अमेरिका जाएँ तो उसके बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बहुत ठंडा है ना, एक चीज़। दूसरी है कि वहाँ स्टेट नामी चीज़ है जो कि चीज़ों को ठीक कर रही होती है। और मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, बाहर वॉक कर रहा था, तो एक एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने कहा यार अब तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने बिल्कुल टाइम नोट किया कि अब क्या करते क्या है ये लोग। विद इन 4 मिनट्स जो है पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई थी और पीछे फायर ब्रिगेड आ गई। अच्छा, मैंने कहा फायर ब्रिगेड क्यों आई? उन्होंने कहा इसलिए कि ऐसा ना हो कि ये लोग गुस्से में आकर चीजों को जला दें, तो फायर ब्रिगेड भी साथ थी और वो सब 4 मिनटों में पहुंची है। हमारे यहाँ कल ड्रिल की थी मुल्तान में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, नहीं उन्होंने ड्रिल की थी कि अगर बम फट जाए तो क्या होगा। तो जो एम्बुलेंस है वो 20 मिनट के पास पहुंची, 40 मिनट के बाद पुलिस वाले आए, 1 घंटे के बाद जो है वो दूसरे रेस्क्यू जराये पहुंचे वहाँ पर कि भाई क्या हुआ है। वो सिविल डिफेंस वालों ने वो किया था। तो ये एक तो हमारे यहाँ स्टेट नामी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वही है कि आपको उन्होंने बिजी रखा हुआ है और आपकी मीडिया भी उसी काम में लगी हुई है और दूसरा चीज़ें भी ठीक होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कराची में सिर्फ 4 महीने पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी कि आप मोटर बाइक जो है आपकी बाइक है उसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं होगी तो हम आपको अंदर कर देंगे। आप अंदाजा करें कि मैं हैरान परेशान रोड पे मैं देखता था कि हर बाइक के ऊपर ना एक मखसूस व्हाइट कलर की, उसमें ब्लू कलर के अंदर लेटर लिखे हुए, एक रात में सबने लगा दी थी। अच्छा। रोड पे नए नए दुकान खुल गए थे रोड साइड पे, 50 रुपए में 100 रुपए में लगा के दे रहे थे, हर कोई अपना नंबर लगा रहा था। तो अगर चीजें हम गवर्नमेंट चाहे तो ये एक दिन में ठीक हो सकती है, मगर एक तो वो चाहती नहीं है, दूसरा उस पर कोई उसको ठीक करने वाला प्रेशर भी नहीं। तो एक चीज तो ये है। दूसरी ये है कि हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर हमने ये मुख्तलिफ चीजें रखी हुई है, हमने अजीब गरीब हीरोज बनाए हुए हैं अपने अपने जो है अपने अपने उस हिसाब से। तो एक तो ये कि हमने एनवायरनमेंट और जो सिविक सेंस, एजुकेशन में भी सही जगह नहीं दी। एजुकेशन में सिविक सेंस जो है ना उसको हमने प्रायोरिटी देनी होगी अपने एजुकेशन सिस्टम सिलेबस के अंदर। तो मेरे ख्याल में फिर चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि अब हम जो एडवांस जो मॉडर्न कंट्रीज है उनसे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, जहाँ पर आपके बच्चे पोलियो का शिकार हो रहे हों, जहाँ डायरिया की वजह से बच्चे मर रहे हों, जहाँ मलेरिया हो रहा हो, जहाँ पर डेंगू खत्म ना हो रही हो, वहाँ पर आप कहें कि हमारा मुल्क ठीक हो जाए। तो मेरे ख्याल में पहले स्टेट ही का काम है ये, और स्टेट ही को करना चाहिए, उस पर प्रेशर ग्रुप्स हो जो कि उनको कहें कि ये आप ठीक करें। और दूसरा ये होगा कि हमने अपने बच्चों को ये समझाना होगा कि एज ए नेशन आप 20 साल के बाद कैसे होंगे, क्योंकि ये जो बड़े हैं ये अब ठीक नहीं होंगे, ये अभी जिद्दी नेशन है, ये समझते हैं कि कानून इसलिए बनाया गया है कि इसको तोड़ना चाहिए।
तो इसको तो मुझे नहीं लगता, मैं बड़ा मायूस हूँ कि ये ठीक होंगे, मगर ये कि आने वाले बच्चे जो हैं उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो ये काम कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ प्रेशर ग्रुप्स हों जो गवर्नमेंट को कहें कि भाई आप चीज़ों को ठीक करें। अब मैं बताऊं आपको, गवर्नमेंट ने जितनी सिग्नेचर किए ना इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कन्वेंशंस पर, वो अगर आप गिने तो थक जाए। उन्होंने कहा ये भी ठीक करेंगे, वो भी ठीक करेंगे, ये भी करेंगे। एक बंदा जाता है न्यूयॉर्क में 4 रातें रहता है और वहाँ पर सिग्नेचर करके वापस आ जाता है, फिर वो भूल जाता है कि मैंने कोई सिग्नेचर पता ही नहीं था उसने जब सिग्नेचर किए थे कि मैंने किए किस चीज पे। हमने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम कमिटमेंट करके आते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 48 मिलियन जो लोग हैं उनके लिए वाशरूम्स लेटरिन नहीं है, और हम कहते हैं कि हम साफ कौम है और फला है और ये है। हमारे पास कराची में एक भी लैंड फिलिंग साइट नहीं है, हम पूरा का पूरा जो कचरा है हमारा वो अब समंदर में फेंक दें, सॉलिड वेस्ट की बात कर रहा हूँ। यानी हमारे यहाँ सिस्टम कुछ भी नहीं है। ये ठीक देखे ना आप, मैं, हम लोग ठीक है, हम पान नहीं थूकेंगे रोड पे, ये ठीक है हम कर सकते हैं, मगर इन सारी चीजों को इतने मैट्रिक टन्स जो कचरा है उसको तो गवर्नमेंट ने ही ठिकाने लगाना है, और उसके लिए हमसे कैसे ले रहे हैं, हम पैसे उसको पे भी कर रहे हैं, मगर अब ये कि उसमें प्रेशर ग्रुप इस तरह के बनने चाहिए, क्योंकि ये सारे काम ठीक गवर्नमेंट नहीं करते हैं, उनको लॉज को इम्प्लीमेंट उन्होंने कराना है। आपके जो ट्रिब्यूनल्स बनी हुई हैं वो काम नहीं करती, जो इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स बनी हुई हैं वहाँ पर केस नहीं जाते, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ठीक कर सकती है, और हमने गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। अच्छा, स्कूल्स के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जैसे हमारे स्कूल्स में अब बहुत अर्ली एज में बच्चे स्मोकिंग करना शुरू होते हैं और उनको नहीं पता कि वो क्या करें। उनके पेरेंट्स को जब पता चलता है जब वो चेन स्मोकर बन चुके होते हैं। शीशे के रेस्टोरेंट हमारे यहाँ आम है, जब भी कोई रेस्टोरेंट खुल रहा है तो वो बाकायदा उसमें फैसिलिटी दिखाता है कि हमारे यहाँ शीशा प्रोवाइड किया जा रहा है। इन चीज़ों को क्यों नहीं कंडेम किया जा रहा, इन चीज़ों के लिए क्यों नहीं लिखा जा रहा, क्यों नहीं बात की जा रही इनके नुकसानात के ऊपर कि ये सारी दुनिया में बैन हो रही हैं चीज़ें, मना की जा रही हैं, लेकिन हम बड़े मज़े से अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इन सारी चीज़ों को एंजॉयमेंट समझ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने वो पहले कहा ना, हम बच्चों को प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है हमारी ना, वो हम उस मुआशरे का उसको एक फर्क जो है वो नहीं समझते हैं, तो हमने उनके तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं एज ए नेशन पूरी जो है कि बच्चा जो है उसके दोस्त कौन है, वो मिल किस तरह है, उसके काम क्या है, इंटरनेट पे क्या चेक कर रहा है। आपको पता है, यानी आप पूरी दुनिया में जाएं, गाड़ी में चाइल्ड लॉक से लेकर इंटरनेट पे जो सेफ सर्फिंग है प्रोटेक्शन उस पे लगाते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लगा भी देंगे तो हमारे बच्चे उसको अनलॉक कर देंगे माशाल्लाह से, बचपन से इतने सीखे हुए होते। तो एक तो ये ना हमने शुरू से ही, क्योंकि बच्चे को बड़ा करने के लिए आपने जो है ना वो, मुझे नहीं पता मैं ज्यादा बच्चों में बोल रहा हूँ, मगर ये कि नहीं जरूरी है क्योंकि इस पे कोई बात नहीं करता, तो उस पे जो है ना मेरे ख्याल में अगर हम लोग कुछ करें, कुछ बच्चों के हवाले से ही कुछ करें। अब वो शीशा पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसकी दोस्त बहुत खराब हैं, हमें पता होना चाहिए कि वो किसके साथ है, और वो नहीं, अब तो ये स्टेटस सिंबल है कि अगर वो पूरी फैमिली है, बल्कि बच्चे क्या पूरी फैमिली होती है और वो बाकायदा शीशा पी रहे होते हैं, उसके फ्लेवर्स होते हैं जिसे वो एंजॉय कर रहे होते हैं। फेसबुक पे स्टेटस लिखा होता है कि मैंने बड़ा एंजॉय किया, वीकेंड पे हम लोग सब गए थे शीशा पीने के लिए। इन बातों को एंजॉयमेंट कहते हैं, एंटरटेनमेंट कह रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ना कि वो उसमें कल वो कहें कि मैं कल लगा के स्कूल जाऊंगा, ये स्टेटस सिंबल है, कल कहेगा मुझे नई गाड़ी चाहिए, ये स्टेटस सिंबल है। अब ये पेरेंट्स अगर समझते हैं, मुझे नहीं लगता। आप देखें ना, छोटे छोटे बच्चों को ड्राइविंग करने के लिए गाड़ियाँ दे देते हैं, मोटर बाइक्स दे देते हैं, उनकी एज भी नहीं होती और वो मोटर बाइक्स लिए हुए सड़कों पे फिर रहे हैं। पेरेंट्स नहीं रोक रहे उनको। कौन से ऐसे लॉज बनाए जाएं, कौन से ऐसे जुर्माने लगाए जाएं? लॉज तो है ना कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, आप ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? तो स्टेट को चाहिए, और उसके लिए मेरे ख्याल में मीडिया को प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करना चाहिए, और खासतौर पे ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया के लोगों को। हमारे यहाँ देखिए सोशल मीडिया जो है वो उसको इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जिस तरह होना चाहिए। लोग अपनी तस्वीर रख देते हैं, कोई मजहबी चीज़ रख देते हैं, किसी के खिलाफ नफरत अंगेज पॉलिटिकल व्यूज रख देते हैं। अब हम लोग वो कर रहे होते हैं ना, अब हम उसको एज ए यानी कि प्रेशर ग्रुप के तौर पे अगर हम लें तो वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो मेरे ख्याल में जो लोग फेसबुक पर हैं या ट्विटर पर हैं या दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पर हैं, उनको चाहिए कि जो समझते हैं समाज के अंदर जो चीज़ें खराब हैं उनके खिलाफ एज ए सिटीजन जर्नलिस्ट उनको चाहिए कि वो रिपोर्ट करें और उस पर वीडियोस बनाएं, ऑडियो बनाएं। कम से कम बुरी चीज़ को बुरी चीज़ तो दें। हाँ,
कॉपी ना करें। हाँ, बच्चा अगर वो ड्राइविंग कर रहा है और गिर जाता है तो आपने देखा होगा वीडियो में सब लोग हंस रहे होते हैं, यानी आपने उसको जो है जॉब ले रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। आपने उसको गलत कहना चाहिए कि लोग यहाँ लोग हेलमेट नहीं पहनते, इस पे कोई वो बात नहीं करते, यानी इस तरह की सीट बेल्ट नहीं लगाते, काम सी बात है, गाड़ियों में सीट बेल्ट नहीं लगाई जाती, जबकि बाहर इस बात की भी केयर की जाती है कि ऐसी सीट बेल्ट बनाई जाएं जिनका शोर कम से कम हो, मतलब वो लगाते हुए शोर ना हो। हमें इस पे ट्रेनिंग दी गई थी तो हमें बड़ा अजीब सा लगा था और हम हंस रहे थे कि हम तो सीट बेल्ट ही नहीं लगाते तो शोर की बात कहाँ से आती है। मतलब नॉइज पोल्यूशन पे हम तो बात ही नहीं करते, नाम समझते हैं कि ऐसा कोई शोर होता है, सीट बेल्ट लगाने में क्या शोर होता है, हल्की सी आवाज़ आती है, वो इसकी भी केयर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखें कितना शोर है। हाँ, मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जब तक हमारा एनवायरनमेंट, मैं ये समझता हूँ जब तक हमारा एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा हम पैसा जो है, हमारी गुर्बत का सबसे बड़ा जो सबब है वो एनवायरनमेंट की खराबी है, जब तक वो ठीक नहीं होगा चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हमारे साथ बड़ी सीरियस गुफ्तगू हो रही है, ब्रेक लेनी चाहिए हमें थोड़ी सी, लेते हैं एक ब्रेक और मज़ीद जानते हैं कि हमारा कसूर क्या है और हमारे जराइम क्या है, दोनों में हम मुलव्विस हैं, हम खुद इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं या हमें ख़राब इन्वायरमेंट दूसरे लोग दे रहे हैं, दोनों पे बात होगी। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। रहिए thelivetv.tv पर लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम के साथ, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एंजॉय करें और वापस आए, मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। Weekend for me is like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। Do your feedback on our admin page, that is www.facebook.com/thelivetv.tv. Until next time, your host Anamak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching the live. Assalamualaikum. My name is Sudus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा गार्ड्स काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का फिर guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them.
the gods. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. व्यूअर्स, लाइव की सुबह में आपको मैं आपकी होस्ट है खुशामदीद कहती हूँ मैं आप लोग के लिए और अपना प्रोग्राम बेहतर से बेहतर किस तरह बना सकती हूँ www.facebook.com/thelifetv.tv। दिन का आगाज अगर मीठी चीज़ से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है, मीठी मीठी बातों से और तकलीफ मेरे साथ रोज होते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट। हर क्रिमिनल के पीछे कोई ना कोई बड़ा सियासतदान मौजूद है। गेस्ट की तरफ उनसे करेंगे वही रोज की तरह पॉलिटिशियन पे पॉलिटिक्स पे बातें। कैफरे किरदार तक आवाम इन सियासतदानों को ही पहुँचाएगी इंशाल्लाह। कि माशरे में हमें खुश रहने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। धमाकों के लिए, मज़ीद झटकों के लिए मज़ीद अभी आप तैयार रहें। दहशतगर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त हो सकता है कि हमारा विरसा होगा। अपने सेकंड सेगमेंट में जिसमें है आज पकड़ा है क्या, आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारे सेकंड सेगमेंट में। वेल टाइम हुआ है हमारे थर्ड सेगमेंट का, इसमें मैं आपको अपने गेस्ट से मुतारिफ करवाती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, सुनो पछताओगे ये बस्ती उजाड़ के। और बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं कश्मीर से पूछूंगी। बड़े बूढ़े कहते थे हमारे क्या ना मेहंदी शर्माती है, सो है ना रात में लगानी चाहिए ब्राइडल की हमेशा। कि जब ब्लास्ट हो रहा है और लोग वहां से भाग रहे हैं और आप उस जगह पे भाग रहे आगे चले, अपने ट्रैक पर चले, फोकस करके चले। मस्ती चाहिए करनी मतलब कोई चाय पीती जा रहे हैं हम लोग हैं। हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें जो कि है www.facebook.com/thelifetv.tv। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लाइव टीवी जरूर देखा करें। Assalamu alaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. And goes. Got it! Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching LiveTV.tv. And next weekend, I'll bring you some latest news from the sports world. वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं द LiveTV.tv पर प्रोग्राम लिविंग लाइफ विद साजिदा और आज मेरे गेस्ट थे अम्मार साहब जिन्होंने बहुत ही फ्रूटफुल बातें की हैं कि किस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। हम प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका कोई कमेंट हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप फेसबुक पर हमें सवाल भेजिए या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी हमें कांटेक्ट करिए फेसबुक पेज पर द LiveTV.tv। हमारे साथ ये बताइए कि हमने इतनी सारी बातें की कि दरख्त लगाने चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए, पानी बचाना चाहिए,
یہ سب کچھ تو کرنا چاہیے، لیکن کیا یہ کرنے کے لیے ہمارے پاس فرشتے آئیں گے، یا ہم اپنے آپ کو کیسے چینج کریں، کیسے وہ چینج لے کر آئیں اپنی سوسائٹی میں کہ اگر آج میں کچرا اپارٹمنٹ کے باہر پھینکوں تو کوئی مجھے ٹوکے اس بات پر کہ یہ تم غلط کر رہی ہو. اگر آج ہم کسی بچے کو بولیں کہ بیٹا اسموکنگ کرنا بری بات ہے تو وہ ہمیں پلٹ کے جواب دیتا ہے جب میرے ماں باپ کو اعتراض نہیں تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے. اس طرح جو لوگوں کا بیہیویئر ہے اس کو چینج کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میرے خیال میں ہم سب لوگوں کو نا اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں اگر پراپر طریقے سے کام کریں، جیسے پولیٹیشنس کو چاہیے کہ وہ اپنی اسمبلیز میں لیجسلیشن کرے، گورنمنٹ کو چاہیے امپلیمنٹ کرائے، اور ایز اے جرنلسٹ مجھے چاہیے کہ میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کروں، کیونکہ جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی، جب تک کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم چیز کیا خراب کر رہے ہیں، تب تک اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ سوچیں گے نہیں. تو سب سے بڑا جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ میڈیا ہے، اور اس میں ٹیلی ویژن، اخبارات، میگزین اور سوشل میڈیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے ساتھی جرنلسٹ اگر دیکھ رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے فیلڈ میں انوائرمنٹ کی جو ادر اسپیکٹس ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، تاکہ لوگوں کو صرف پتہ چلے کہ ہمارے حالات ہیں کیا. تو باقی کام جو ہے وہ گورنمنٹ کرے گی، اس کے ساتھ لوگ کریں گے، اور پھر سب لوگ انوالو ہوں گے. جب تک کہ اویئرنیس نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو کام ہے، جو یعنی کہ میڈیا کا جو کام ہے، وہ بہت اہم ہے. اور اگر ہم سب جرنلسٹ مل کے انوائرمنٹ کے مختلف اسپیکٹ کو اگر ہم اچھے طریقے سے رپورٹ کریں تو یہ بہت بڑی ایک خدمت ہوگی، لوگوں کو اویئرنیس ہوگی، اور ساتھ میں جو پولیٹیشنز ہیں، لیجسلیٹرز ہیں، جو گورنمنٹ ہے، جو آفیشلز ہیں، وہ سب لوگ اس پورے پول کے اندر آ جائیں گے اور وہ سب کام کرنا شروع کریں گے. جیسے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ہم کم از کم ایٹ لیسٹ ویکلی ایک میسج تو اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں اپنے اپنے اسٹیٹس کے اوپر کہ اپنے ماحول کو صاف کریں، تاکہ دوسرے دوست جو ہمارے اس کے اوپر ہیں وہ پڑھ کر کم از کم اویئر ہوں اور انہیں یاد آئے کہ انہوں نے ابھی کچرا کہاں پھینکا ہے، انہوں نے ابھی کہاں گندگی پھیلائی ہے، وہ ابھی دیکھیں. اب آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم لوگ وہ جو اسٹیٹس بچے دیتے ہیں کہ ہم نے شیشہ پیا بڑا مزہ آیا، اگر اسی جگہ پر ہم کہیں کہ ہم نے ایک نیم کا درخت لگایا اور بہت مزہ آیا، اگر وہی فوٹوز ہم لگا رہے ہوتے تو آپ سمجھیں کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کہ کل ہمارے 10 دوست جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی جا کر کہیں درخت لگائیں. تو میرے خیال میں اگر ہم سوشل میڈیا کو اس طرح استعمال کریں وہ بہت بڑی بات ہوگی. جیسے ہم پکنک پوائنٹس پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم کچرا کوڑا پھیلا کر آتے ہیں اور پھر بڑے مزے سے وہ اسنیپس دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے بوٹلس پھینکی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں ہم نے یہ کھایا تھا. لیکن کبھی ہم یہ نہیں دکھاتے کہ ہم اگر وہاں پہ پکنک منانے گئے تھے تو ہم نے اس میں سے تھوڑا سا علاقہ صاف بھی کیا، یا اپنا ہی کچرا کم از کم ہم اٹھا کے گھر تک لے کر آئے. اس طرح کے پیغامات ہونے چاہیے. ہاں میرے خیال میں ہونے چاہیے، اور اس میں میڈیا کا سب سے بڑا رول ہے، اور جرنلسٹ کو چاہیے کہ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ میڈیا سے بات کریں، اور میڈیا کو انکریج کریں کہ میڈیا خود جو ہے وہ رپورٹ کریں ان چیزوں کو. اور انوائرمنٹ کو جب تک میڈیا ہماری رپورٹ نہیں کرے گی میرے خیال میں چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ یہاں پر آپ لائیو ٹی وی پر آئے، آپ کو کیسا فیل ہوا، اور مزید آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اور اپنے پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے کیا کریں؟ تو آپ بتائیں. میرے خیال میں مجھے تو بہت اچھا لگا، یہ ایک بہترین کنسیپٹ ہے کہ آن لائن ٹی وی کا کنسیپٹ ہے، اور یہاں پر آ کر مجھے بہت اچھا لگا. میرے خیال میں میری سجیشنز ہیں کہ اگر پروگرام چھوٹے چھوٹے کریں، مختلف سبجیکٹس پر کریں، اسپیسیفک کریں، اور اس کو سوشل میڈیا پر اگر رکھیں اور فیس بک پہ رکھیں، اور اس میں بہت سے لوگوں کو اگر انوالو کریں تو میرے خیال میں وہ بہت اچھا ہوگا. اور میں انوائرمنٹ کے حوالے سے اپنے جرنلسٹ دوستوں کو کہوں گا کہ کیونکہ انوائرمنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، تو اس کے اندر اگر ہم سب لوگ تھوڑا تھوڑا رپورٹ کرنا شروع کریں تو اگر ہماری انوائرمنٹل کوریج اگر بڑھ جائے تو بہت سے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ انوائرمنٹ کی رسپیکٹ کریں اور اپنے بچوں کو انوائرمنٹ کی رسپیکٹ کرنا سکھائیں، کیونکہ یہ نیچر نے ہمیں ایک بہت بڑے پروسیس کے بعد یہ جو ہے زمین دی ہے، جس کے اوپر سب چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، سارے ریسورسز جو ہیں وہ موجود ہیں. ہم ان کو اس طرح ضائع نہ کریں، اور یہ چیزیں اگر ہم لوگ ان کو بچا کے رکھیں تاکہ آنے والی نسلیں بنی نوع انسان جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ نیچرل ریسورسز چلتے رہیں. اور میرے خیال میں اگر ہماری نیشنل میڈیا انوائرمنٹ کے ان خرابیوں کو اگر بہتر طریقے سے رپورٹ کرے تو یہ بہترین ہوگا. بہت شکریہ آپ کا، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور آپ نے ہمیں اتنی مفید معلومات دی
जो कम अज़ कम मुझे इससे पहले हुई थी। बहुत शुक्रिया। देखा नाज़रीन आपने कि अम्मार ने हमें कितना कुछ बताया कि हम किस तरह इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, किस तरह अपनी नेचर को बचा सकते हैं, किस तरह अपने बच्चों को अवेयर करें और अपने फ्यूचर को बचाएं, क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। अगर आज वो अवेयर हो जाएंगे इस बात से कि किस तरह इन्वायरमेंट की हिफाजत करनी चाहिए, तो यकीनन कल हम एक हेल्दी और ग्रीन इन्वायरमेंट में सांस ले रहे होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और आप भी इस प्रोग्राम का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पर मैसेज कीजिए thelifetv.tv के पेज पर, और हमें बताइए कि आप में क्या ऐसे गुण हैं, क्या ऐसी खूबी है, क्या ऐसी क्वालिटी है कि हम आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनें। और मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी टाइम इसी चैनल पर फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो सलाम, मैं वेलकम। म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एंजॉय करें, और वापस आए मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। Weekend for me is like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching The Life. Assalamu alaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. And goes. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching LiveTV.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया। रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हिजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हिजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए।